Good morning everyone. I hope you people are absolutely fine. मैं मॉर्निंग में शूट कर रही हूँ इसलिए गुड मॉर्निंग. इफ़ यू आर वाचिंग दिस video in the afternoon, good afternoon, or in the evening, then good evening. So in today's video we are going to cover our poem, that is A Tiger in the Zoo. This poem is in syllabus of class 10 CBSE. So without any further delays, I would tell you two things. One, keep pencil in your hand, keep noting everything, right? Whatever is there in front of your screen, on your screen, please make sure that you're writing everything. Every point is necessary. Second thing, you are watching the video, I hope my explanations are absolutely clear to you people, so you must just give your feedback through like or comments. Okay, so let us begin. A Tiger in the Zoo. It is written by Leslie Norris. So we discuss here the central idea of the poem. The central idea of the poem is कि हमारी स्टोरी, हमारी पोएम किस चीज़ को टारगेट कर कर चल रही है और क्या चीज़ हमें इस पोएम में बताई जा रही है. ठीक है. सो द पोएट एक्सप्लेन्स द एगनी होता है द एक्सट्रीम हिडन एंगर and helplessness of a caged tiger. Helplessness of a caged tiger. Cage means one who is trapped in a zoo, in a bar, in a cage. ठीक है. Helplessness that he cannot do anything right now. He is just supposed to be there in the cage. Next, the poet explains what life could be if the tiger had been a free animal. क्योंकि ये इसकी दो सेटिंग्स हैं. पोएम की दो सेटिंग्स हैं. दो सेटिंग इस तरीके से. वन, द लाइफ इन द जू वेयर ही इज़ इन अ केज. द सेकेंड सीन सेटिंग इज इन एज अ फ्री एनिमल. कि अगर वो फ्री एनिमल होता, अपने नेचुरल हैबिटेट में होता, इन द नेचुरल हैबिटेट, राइट. अगर वो अपने नेचुरल हैबिटेट में होता तो वो कैसा होता, क्या उसकी लाइफ होती. Next, third, the condition of animals that are caged by human beings for fun. जू में एनिमल्स को क्यों रखा जाता है? फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट ऑफ ह्यूमंस, कि ह्यूमंस आके देख सके कौन कौन से एनिमल्स हैं. दे कैन शो देयर किड्स कि ये एनिमल्स हैं जो आप बुक्स में पढ़ते हैं, बुक्स में पिक्चर्स देखते हैं, ये टीवी में पिक्चर्स देखते हैं. दे लुक लाइक दिस. ठीक है. एंड दैट इज़ ऑल फॉर देयर फन. सो हेयर द कंडीशन ऑफ एनिमल्स हैज़ बीन द प्लाइट. बेसिकली मैं दुख बोलूँगी यहाँ पे, जो दुख है एनिमल्स का. सो यहाँ पे फ़न के लिए एनिमल्स किस तरीके से रह रहे हैं, उनकी मतलब एक अनहेल्दी कंडीशन जो है, मतलब एक नेचुरल हैबिटेट में रह के जो उनका ग्रीफ है वो बाहर आ रहा है. वी हैव द मैसेज हियर. मैसेज क्या कहता है? फ्रीडम इज़ द नेचुरल इंस्टिंक्ट ऑफ एवरी ह्यूमन. फ्रीडम इज़ द नेचुरल इंस्टिंक्ट का मतलब क्या है? कि हर पर्सन की एक नेचुरल फीलिंग होती है क्या? टू बी फ्री. नो वन वॉन्ट्स टू बी एनस्लेव्ड और केज्ड इन हाउस. ठीक है. when we had this quarantine period, we felt like we are caged, है ना. You would have seen post or some images also where you could see that now birds are free or animals are free, but we are caged. So no one wants to be caged. Everyone likes freedom, right? Next is wild animals should live in their natural habitat. Wild animals should live in their natural habitat because it is their place. हमारी place घर में है. Similarly, their home, their house, their life is in forest, is in jungles, forest, right, woods, whatever you say. Then we have, just like humans, animals too long for freedom. Too long, ज़्यादा लंबा नहीं. Longing का मतलब यहाँ पे है wish, desire. यहाँ पे long का मतलब lengthy वाला लंबा नहीं है. It means too long. मतलब that means they also wish for it or desire for freedom. Not only humans have the right to be free, but animals and birds and every natural being on this earth has the right to be free, right? So let us now move on to the explanation of the poem, right? So here we have stanza 1, that is the description of, which tells us about the description of a tiger. How it looks. The appearance of the tiger has been explained in this, has been written in this paragraph, and we'll see the explanation. He stalks in his vivid strips,
द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट in his quiet rage. So he stalks. Stalks means moving very slowly without any noise. ठीक है, जब आप बिल्कुल चोरी छुपे मतलब without moving silently. ठीक है, stalks means moving silently. In his vivid strip. यहाँ पे he किसको बोला गया है? टाइगर को. यहाँ पे he किसको बोला गया है? टाइगर को. Stalks means moving silently. In his vivid strips, vivid means the strips. Strips कौन सी हैं इसकी? Strips कैसी होती हैं इसकी? Black and dazzling yellow. Dazzling means bright yellow. ठीक है, dazzling yellow color, right? So vivid क्यों बोला गया है? Because the strips are absolutely clear and bright. ठीक है, the yellow and the combination of black makes it very vivid, colorful and bright. ठीक, the few steps of his cage. The few steps क्यों बोला गया है? Because he is there in the cage, so he can only walk a few steps. जितना cage की length है बस उतना ही वो चल सकता है. On pads of his velvet quiet. Velvet क्यों बोला गया है? जो इसके claws हैं, जो इसके foot हैं, ठीक है, under that there is a very soft cushiony platform or touch feel you can say, and it looks like velvet. The velvet is a fabric, ठीक है, जो कि बहुत soft होता है. It is very soft in touch. Similarly the pads of the tiger, ठीक है, जो पंजे हैं नीचे से वो बिल्कुल क्या होते हैं? एक सॉफ्ट कुशन की तरह लगते हैं. ठीक है, एंड दे आर वेरी स्मूथ एंड स्लीकी. देन वी हैव क्वाइट. क्वाइट मतलब वेलवेट quiet. Here the movement has been shown that the movement in those of those claws of those pads is very quiet. In his quiet rage. और ये quiet rage क्या बताया गया है? Not only his movement is quiet, not only he himself is quiet, but his anger is also quiet. And that anger, this quiet rage, this quiet rage tells us about the extreme anger. It tells us about extreme anger. ठीक है, the extreme anger. अब बहुत गुस्सा है वो. ठीक है, in his quiet rage he has suppressed his anger, his agony. उसने अपना गुस्सा क्या किया हुआ है? दबाया हुआ है. ठीक है, सो वेयर इज ही राइट नाउ? ही इज इन द केज and his description has been given in this paragraph. So now let us see the poetic devices we cover here. One is the rhyme scheme. I told you earlier rhyme scheme कैसे पता लगाते हैं. rhyme scheme फिर से देख लेते हैं. We'll take the last word of every line. Strips, cage, quiet, rage. Does strips match with cage? No. Then it is A, it is B. Strips quiet? No. Cage quiet? No. Then it is C. Right? And then we have cage, rage. Cage, rage. It sounds similar. So the rhyme scheme of the poem becomes A, B, C, B. Right? Next, we have personification. Personification is when any animal or any non-living thing has been considered as a living thing, then we say personification. So here we said he for the tiger, that is why he is personified. Then we have metaphor. Metaphor is when we compare two different things together. ठीक है, two different things on the basis of some adjective, right? तो यहाँ पे हमने उसके पैड्स को वेलवेट के साथ कंपेयर किया है. वेलवेट जितना सॉफ्ट होता है, स्लीक होता है, शाइनी होता है, उतना ही सॉफ्ट पैड्स को हमने कंपेयर किया है वेलवेट के साथ. सो हेयर इट बिकम्स मेटाफर. मैंने जहाँ जहाँ पोइटिक डिवाइस जो जो बताए हैं आप वहाँ पर लिख लीजिए. ठीक है. Then we have the enjambment. What is enjambment? Enjambment is the continuation of a line in another line without any punctuation mark. तो यहाँ पे हम देखेंगे we have strips के बाद कोई पंचुएशन नहीं है. द फ्यू स्टेप्स कंटिन्यू हो गया.
but the few steps of his cage, main enjambment यहाँ पे है, because this is a different line, this is a different line. The few steps of his cage on pads of velvet quiet. So this line has been continued here without any punctuation mark, so we have enjambment. I hope the paragraph was clear to you. Now let us move on to the second stanza that says, now here the scene is, where is the poet? The poet is in the second setting of the poem. The second setting of the poem, and that second setting is in his natural habitat. In his natural habitat. Now your question would be, if he was caged here, तो वो अपने natural habitat में कैसे आया? नेचुरल हैबिटेट में वो इस तरीके से आया क्योंकि पोएट यहाँ पे इमेजिन करता है उसकी लाइफ कि टाइगर की लाइफ क्या होगी अगर वो फ्री इन्वायरमेंट में है या अपने नेचुरल हैबिटेट में है, फॉरेस्ट एरिया में है. ठीक है, सो यहाँ पे एक इमेजिनेशन की गई है उसकी फ्री लाइफ की. किसकी? टाइगर की फ्री लाइफ की. इमेजिनेशन ऑफ टाइगर्स फ्री लाइफ. ओके, सो ही शुड बी लर्किंग इन शैडो. शैडो का मतलब है यहाँ पे बिहाइंड, इन द नाइट टाइम और बिहाइंड एनी ट्री विच वुड कवर हिम, जो कि उसको कवर कर लेगी और पता नहीं चलेगा कि टाइगर की प्रेजेंस वहाँ है या नहीं. ही शुड बी लर्किंग इन शैडो. लर्किंग का मतलब क्या है? वेटिंग फॉर द प्रे. प्रे है शिकार. यहाँ पे प्रे का मतलब क्या है? शिकार. बाय हाइडिंग, छुपकर. जब वो टाइगर की आदत क्या है? घास के पीछे छुप जाना, पेड़ के पीछे छुप जाना. अचानक से कोई एनिमल दिखे तो उसके ऊपर छलांग लगा के अटैक कर दो. बिल्कुल इसी तरीके से इस पैराग्राफ में बताया है. स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास. स्लाइडिंग मीन्स वॉकिंग स्टीलेटली, बिना किसी को पता चले. ही वॉक्स इन सच अ वे, लंबी झाड़ियों के पीछे, क्योंकि ये ग्रासलैंड्स की इमेजिनेशन है. ग्रासलैंड्स को इमेजिन किया गया है. ठीक है, ग्रासलैंड्स आपने अपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा. लॉन्ग ग्रास के पीछे वो जाके छिप जाता है और जैसे ही उसे कोई एनिमल मिलेगा, अभी वो क्या है? बिल्कुल चुपचाप शैडो में, या तो नाइट टाइम में, या ग्रास के पीछे या ट्री के पीछे चुपचाप वेट करता है छिपकर. किसका? अपने प्रे का. और जैसे ही प्रे उसे दिखता है तो बिल्कुल स्टीलेटली, ठीक है, बिल्कुल साइलेंटली वो वॉक करता है लॉन्ग ग्रास से होते हुए और सीधा किधर जाता है? नियर द वाटर होल. वाटर होल क्यों बोला गया? क्योंकि जैसे ही कोई एनिमल, कोई डियर, कोई बफलो, ठीक है, या कोई भी एनिमल वाटर होल के पास आता है, ठीक है, वाटर होल मतलब वाटर पाडल, ठीक है, या जहाँ पे रिवर बॉडी हो, छोटी सी पॉन्ड हो एक, जैसे ही कोई एनिमल वहाँ पे पानी पीने आता है, ही अटैक्स ऑन देम वे प्लम्प डियर पास. तो यहाँ पे एक कॉमन एग्जाम्पल लिया गया है डियर का, कि जब डियर आती है वाटर होल के पास पानी पीने, वो भी हेल्दी डियर, इट अटैक्स ऑन देम. ठीक है, सो यहाँ पे हम पोइटिक डिवाइस डिस्कस कर लेते हैं. राइम स्कीम फिर से कर लेते हैं. वैसे राइम स्कीम हर पोएम की सेम होती है. ठीक है, मतलब पोएम के हर पैराग्राफ, हर पोएम की सेम नहीं होती है. पोएम के हर पैराग्राफ की सेम रहती है, स्टैंजा की सेम रहती है. ठीक है, बट स्टिल वील डिस्कस हियर. शैडो ग्रास होल पास. शैडो ग्रास, नो साउंड, सिमिलर साउंड, so it is A, this is B. Shadow hole, grass hole, it does not sound similar to any one of them, so C. Grass pass, grass pass, so P. So it becomes A, B, C, B. ठीक है, then we have enjambment. अभी हमने enjambment डिस्कस किया है, तो यहाँ पे enjambment है नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास. तो ये नेक्स्ट लाइन में कॉन्टिन्यू हो गया, इसलिए यहाँ पे ये क्या हो गया है? एन्जैम्पमेंट. ठीक है, और यहाँ पे भी ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास. तो इन दो लाइंस में भी एन्जैम्पमेंट है. ठीक है, आई होप यू आर राइटिंग एवरीथिंग, बिकॉज वीडियो इतने टाइम तक तो प्रोलॉन्ग करती है एक पॉइंट ऑफ पेज पर या पार्ट पर कि आप सब कुछ लिख पाएँ. ठीक है, देन इज़ एलिट्रेशन. सुनने का कोई फ़ायदा नहीं होता है जब तक आप उस चीज़ को लिखे नहीं, क्योंकि वो डबल मेमोराइजेशन के लिए आपको हेल्प करेगा. इट विल हेल्प यू इन फ्यूचर ऑल्सो. यू कैन रिवाइज ईजिली. देन इज़ एलिट्रेशन. एलिट्रेशन इज़ द रिपीटिशन ऑफ सेम साउंड वर्ड्स एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड. सेम साउंड लेटर्स, सेम साउंड लेटर्स
same sound letters with within two or more consecutive words, right? So we here have sliding, nahi, he should be lurking in the shadow. Should ka sh or shadow ka sh, so should, shadow. Then we have here plump, pass, so P and P, so it here becomes alliteration. यहाँ पे भी आप लिख लीजिए alliteration, right? Then we have imagery. अब imagery क्या है? जब एक natural या जो predicted होता है, ठीक है, जो पता है हम लोगों को, जब ऐसे सीन की हम इमेजिनेशन करते हैं, किसी भी सीन की हम इमेजिनेशन करते हैं, किसी पोएम में, इन एनी पोम, इफ़ यू आर इमेजिनिंग एनी सीन, ठीक है, टू कन्वे एनी आइडिया और थॉट, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं इमेजरी. जैसे यहाँ पे हमने पोएट को, टाइगर को कहाँ इमेजिन किया है? वी हैव इमेजिन्ड हिम इन हिज नेचुरल हैबिटेट, द इमेजिनेशन ऑफ टाइगर्स फ्री लाइफ. तो यहाँ पे इमेजरी आया है, ठीक है. सो लेट अस मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट पैराग्राफ. सो दिस पैराग्राफ टेल्स अस अबाउट द पावर ऑफ द टाइगर, ठीक है, कि टाइगर की पावर क्या है और वो कैसे अपनी पावर को रिवील करता है किसी के सामने. ही शुड बी स्नालिंग अराउंड द हाउसेस. स्नालिंग का मतलब है गुर्राना, ग्राउलिंग, ठीक है, गुर्राना. तो जैसे ही टाइगर ग्राउल करता है, गुर्राता है, दहाड़ मारता है, एट द जंगल्स एज. एट द जंगल्स एज पे क्या होंगे? रेसिडेंशियल एरियाज होंगे, वेयर सम ह्यूमन्स वुड बी रिसाइडिंग. कमिंग आउट ऑफ द, अभी भी वो कहाँ पे है? वेयर इज द टाइगर? ही इज स्टिल इन द, he is still, the poet has imagined the life of a free tiger. तो यहाँ पे अभी वो कहाँ है? ही इज़ आउटसाइड द जंगल, ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द जंगल. जंगल जहाँ ख़त्म होता है उसके बाहरी हिस्से में. एट द जंगल्स एज, बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, हिज क्लॉज. बेयरिंग का मतलब है दिखाना. बेयर वर्ड होता है ना, अनकवर्ड. बेयर का मतलब क्या होता है? अनकवर्ड. तो हेयर ही इज शोइंग इज वाइट फैंग्स. फैंग्स किसको बोला जाता है? आपने कभी देखा हो टाइगर के ऐसे करके आगे दो कैनाइन होते हैं, ठीक है, which he uses to tear the flesh or to attack immediately upon his prey, ठीक है. तो इन वाइट फैंग्स को वो दिखाता है while he is growling, ठीक है. his claws, और उसके क्लॉज भी क्या हैं? क्लॉज में बहुत शार्प क्या होते हैं उसके? जो उसके नेल्स हैं उन्हें फैंग्स बोला गया है. पंजों में जो नाखून हैं वो इतने शार्प होते हैं, दे कैन टीयर द फ्लैश आउट ऑफ अ बॉडी. सो ये क्या है? फैंग्स. मोर ओवर द टीथ ही हैव. टेरराइजिंग द विलेज. टेरराइजिंग द विलेज मीन्स दिस इज हाउ द टाइगर dominates his power. How does he terrorize the village? He does not terrorize the village, he terrorizes the villagers, ठीक है. तो यहाँ पे ये चीज़ क्या बताई गई है कि वो villagers को डराता है. पूरे कैसे डराता है? by bearing his white fangs, through his claws and by growling, ठीक है. Now coming on to the next stanza. Okay, sorry, we haven't discussed the poetic device. Rhyme scheme discussed earlier. Enjambment आपको पता है. अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज. तो ये लाइन और ये लाइन कॉन्टिन्यू हुई हैं विदाउट एनी, ठीक है, विदाउट एनी पंचुएशन. तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास? एंजैम्पमेंट, ठीक है, राइट. देन वी हैव इज ओनोमेटोपिया. ओनोमेटोपिया इज अ साउंड वर्ड. जब भी पोएम में कहीं पे साउंड वर्ड यूज़ हो तो वो ओनोमेटोपिया. तो हेयर वी हैव यूज नालिंग, ठीक है. तो यहाँ पे कौन सा आ गया? ओनोमेटोपिया. देन वी हैव कॉन्सोनेंट्स. कॉन्सोनेंट्स होता है किसी कॉन्सोनेंट लेटर का बार बार रिपीट होना. कॉन्सोनेंट्स पता है हमको, वोवल्स को हटा दिए जाए तो कॉन्सोनेंट्स आते हैं. सो हेयर इन दिस लाइन वी हैव हिज एस, फैंग्स एस, हिज एस, क्लॉज एस, ठीक है. इसका रिपीटेड यूज है, राइट. एंड देन वी हैव एजोनेंट्स. एजोनेंट्स वी हैव इज इन snarling A around A, ठीक है. Then we have in bearing A, fangs A,
clause A. ठीक है, so here we have the assonance, right? Now let us switch on to the next stanza. Here the poet comes back to the reality where the tiger is caged. He is caged in a bar. ठीक है, बार अब किस तरीके से है, यहाँ पे एक पिंजरा है, एक बड़ा सा केज है जिसमें उसे बांध के रखा हुआ है. ठीक है, पावरलेसनेस एंड हेल्पलेसनेस. तो यहाँ पे पोएट क्या दिखाता है कि इतना फेरोशियस एनिमल होते हुए भी, इतना फेरोशियस, इतना स्ट्रॉन्ग, ठीक है, और इतनी पावर्स रखने वाला एनिमल भी जिससे पूरा विलेज डर जाए, ठीक है, उससे क्या है, आज वो क्या है, हेल्पलेस है. वाई? बिकॉज ही इज़ बिहाइंड द बार्स. और वो बार्स भी कैसे हैं, कॉन्क्रीट है. कॉन्क्रीट मतलब दिख रहे हैं. ऐसा सेल यहाँ पे हमारे वो रिमोट के सेल नहीं बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, सेलफोन्स की बात नहीं हो रही है, सेल यहाँ पे बात हो रही है केज की. तो वो केज क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग और टैंजिबल है. टैंजिबल मतलब दिख रहा है कि हाँ इतना स्ट्रॉन्ग वो बिल्ट है. ठीक है, बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार्स. उसकी सारी स्ट्रेंथ कहाँ है, बिहाइंड द बार्स. ठीक है, बार्स क्या होते हैं, जो केज में ऐसे लाइंस होती हैं उन्हें बार्स बोला जाता है. ठीक है, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज. लेंथ मतलब जितनी भी एरिया है बस उसके पास चलने के लिए. ठीक है, सपोज दिस इज द एरिया ऑफ द केज, तो वो बस इसी एरिया में घूम सकता है. सो ही इज़ वॉकिंग साइलेंटली within his cage, ignoring the visitors, because here he is not taking interest in the people coming to look him, right? He is more concerned about his freedom, and when he does not have his freedom, he is helpless and he cannot do anything except roaming within the cage itself. ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम राइम स्कीम पर. राइम स्कीम मैं आपके साथ पहले डिस्कस कर चुकी हूँ. पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या है, हिज स्ट्रेंथ, ही इज़ लॉक्ड, तो यहाँ पे ही किसके लिए यूज़ हो रहा है, टाइगर के लिए. ठीक है, देन वी हैव एलिट्रेशन. एलिट्रेशन इज सेम साउंड लेटर्स, तो बिहाइंड का बी, बार्ड्स का बी. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, एलिट्रेशन. अब यहाँ पे इमेजरी नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ पे एक्चुअल सीन बताया गया है. फर्स्ट सेटिंग में जो पोएट ने बताया था, फर्स्ट सेटिंग क्या थी, द टाइगर इन अ केज, लाइफ ऑफ अ टाइगर इन अ केज. ओके, सो लेट अस मूव ऑन टू द लास्ट पैराग्राफ, लास्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम. ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट. लास्ट वॉइस किसकी है यहाँ पे, लास्ट वॉइस ऑफ द लास्ट विजिटर्स एंड द पेट्रोलिंग कार्स. आखिरी जो आवाज़ आती है उसको नाइट में. यहाँ पे ये बताया गया है द रेस्टलेस लाइफ ऑफ अ टाइगर. दिन में कौन डिस्टर्ब कर रहा है टाइगर को, उसके फ्रीडम से कौन सीज कर रहा है, विजिटर्स, क्योंकि दिन में विजिटर्स आते हैं. अब जब रात में टाइगर का एक पीसफुल टाइम होना चाहिए जहाँ पे वो सो सके, या जो भी है, मतलब उसकी एक रेस्टलेसनेस दिखाई गई है किस तरीके से, कि दिन में तो विजिटर्स आते हैं और शाम में, रात में जब विजिटर्स चले जाते हैं तो कौन डिस्टर्ब करता रहता है, इवन द पेट्रोलिंग कार्स. पेट्रोलिंग कार्स क्या होती हैं, गार्ड कार्स. ठीक है, आपने देखा होगा जीप वगैरह में रहते हैं ये देखने के लिए कि सारे एनिमल्स केज में है या नहीं. ठीक है, किसी का लॉक तो खुल नहीं रहा या कोई और प्रॉब्लम हो तो वो ये देखने आते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया गया है, ही इज़ नीदर एट रेस्ट इन द डे टाइम. डे में भी रेस्ट नहीं है और नाइट में भी नहीं है. डे में क्यों नहीं है, बिकॉज विजिटर्स आर देयर. और नाइट में क्यों नहीं है, बिकॉज ऑफ द पेट्रोलिंग कार्स एंड द गार्ड्स. ठीक है, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, द पेट्रोलिंग कार्स, एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज at the brilliant stars. ठीक है, so he hears even the last voice at the night of the patrolling cars. They come to check, and ये last two lines क्या बताती हैं, and stares with his brilliant eyes. Brilliant eyes क्यों है, one thing that is the sadness of confinement. इस लाइन में क्या पता चल रहा है हमें कि वो enslaved है. ठीक है, he is enslaved, ये चीज़ क्लियर है. बट हिज थॉट्स आर फ्री, हिज होप इज़ फ्री, होप ऑफ बीइंग फ्री वन डे. ठीक है, दैट इज़ वाई ही हैज़ द ब्रिलियंट आइज. ऑल्दो ही इज सैड नाउ, अभी वो सैड है, बट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, एट अ फ्रैक्शन ऑफ पार्ट ऑफ सेकेंड और टाइम,
he feels with the hope, he is filled with the hope that one day he'll be free. At the brilliant stars, twinkling stars, brilliant किसे बोला गया है? twinkling stars जो नाइट स्काई में क्लियर हैं. स्काई दैट इज लिबरल. अब यहाँ पे दो चीज़ों का कंपेयर किया गया है. टाइगर जो कि कन्फाइंड है, बंद है, पर यहाँ पे स्काई में जो स्टार्स हैं वो बिल्कुल क्या हैं? फ्री हैं. So this is how the setting of the poem has been done. We have the poetic device here to discuss. The rhyme scheme discussed earlier. Enjambment आपको अब पता चल गया होगा. And steers with this. देखिए ये लाइन और ये नहीं हो सकता क्योंकि पंचुएशन आ गया. So we have and steers with his brilliant eyes at the brilliant star. तो यहाँ पे हमारे पास enjambment है. ठीक है. And the last we have is alliteration. Then we have is alliteration. Alliteration is steers not we don't have alliteration here, I'm sorry. It's assonance. Assonance is the repetition of the same vowel sounds. ठीक है. That is his eye, brilliant eye. Okay, so here we complete the poem. I hope you understood it. Give your feedback through liking it or your comments. ठीक है. And I'll be glad if this explanation comes directly into your brain, and moreover कि आपने सब कुछ लिखा हो. ठीक है. Because it will be helpful for you in the future for revision, because I have discussed every minute detail of the poem. Thank you for watching the video. Have a nice time. See you in the next class. Bye.